every exam cycle is a new exam cycle. Every exam cycle has a new set of surprises, has a new set of learnings. It becomes very important for every aspirant of RBI Grade B 2024 that they actually take out the key learnings from 2023 so that while they are preparing for 2024, they are bang on target. They are bang on their dream job. So इस वीडियो में we are going to discuss about five key learnings. आप इनको ध्यान से सुनिएगा. That can give you immense value and that can actually give you the right direction, the right roadmap and the perfect strategy to appear for 2024. So before I start with those 5 key learnings, I want to show you something very important. This is RBI Manager Comprehensive Guidebook, which is everything for RBI. RBI as a job, क्या है, क्या उसमें होता है, क्या promotions हैं, क्या hierarchy है, and about the examination also you will get everything. Syllabus भी मिलेगा, PYQs भी मिलेंगे, which are very important for you to actually know that what is the need of the exam. So download this guidebook और ये बिल्कुल free है. The link to download this guidebook is given in the description of this video. आज ही download करिए, पढ़िए. I am sure you will be highly motivated to crack RBI after reading this guidebook. So now coming on to the learnings. Before I start with the learnings, what was usual this year, right? What was usual this year? काफी चीजें usual थी जो हर साल होती हैं. FM was relatively easier than ESI. ESI was more of a current affair based. Static का weightage कम था. Quant tough आया था. Reasoning tough आई थी. GA tough आई थी. These are very usual things which are happening now year after year. They have become a trend. तो ये तो आप सब लोग जानते ही हैं. I will not discuss about this, but I'll discuss about something which was different, which was unique this year, and we will take our learnings from those unique things that happened this year. So सबसे पहले learning जो मुझे लग रही है, और I would say this has become more ingrained in the exam cycle, right? This has kind of become a permanent thing now, that your phase 1 is now becoming more tougher than phase 2 to crack. No doubt phase 2 is important, but phase 1 though qualifying, I think here you need to give equivalent importance as you might be giving to phase 2 also. तो पहले हम उल्टा बताते थे कि phase 2 पढ़ो, phase 2 में ज़्यादा आपको टाइम लगाना पड़ेगा, it's a merit section, but now I think the trend is becoming such that maybe it's easier to study for phase 2 and crack it, but it is becoming more and more difficult to crack phase 1 now, right? And phase 1 is not about now okay, I would read some selective current affairs or I would do some selective questions on quant and reasoning and I am ready to go for phase 1. That is not the scenario now. You have to be fully prepared. You have to be fully prepared, and for that you have to do comprehensive study even for phase 1 though it is not qualifying, and for that you have to start early. So जो वो पहले होता था ना कि यार 2 महीने में मैं सारे करंट अफेयर भी पढ़ दूंगा, मैं क्वांट के सारी प्रिपरेशन रीजनिंग की भी कर लूंगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. इट इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ स्वेट ऑन योर साइड टू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर ऑल दी फेज 1 कंपोनेंट्स. तो इसको दिमाग में रख के यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड स्टार्ट अर्ली. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, if I talk about current affairs for phase 1 specifically, the first very important learning that comes out is about the duration of current affairs. So I still see many mentors telling कि आप 9 महीने के current affairs पढ़ो, 12 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ो फॉर फेज 1. आई एम टोटली अगेंस्ट इट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल रिटेनिंग करंट अफेयर्स इज अ बिग टास्क, almost impossible. So unless and until you limit down the number of months you are studying, you're never going to do best in your current affairs. So here if you see, and this was the last year also, right? This year the trend has become even more potent, I would say. यहाँ पे आप मई और जून के देखिए. योर एग्जाम वाज इन जुलाई. द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम मई एंड जून करंट अफेयर्स इज ऑलमोस्ट लाइक 40, 46, 55 क्वेश्चंस, राइट? और अगर मैं अप्रैल के भी ऐड कर लूं, इफ आई टॉक अबाउट लास्ट 3 मंथ्स, देयर ऑलमोस्ट लाइक 60 फ्रॉम द लास्ट 3 मंथ्स. So instead of focusing on other 20 questions and going for 9 and 12 months, I would say focus on these 60 questions. Revise your current affairs for last 3 months again and again, because that gives you the best chance to cover it in depth and to retain it. Because ऊपर से अगर आप 1 साल के भी पढ़ लेंगे, that is not going to help. They are asking you in depth questions now. तो ड्यूरेशन आप फेज 1 के लिए मेरे हिसाब से 3 महीने रखिए. फॉर फेज 2 स्टिल गो फॉर 5 to 6 months, बट देयर इज नो नीड ऑफ गोइंग फॉर 9 to 12 months. इफ यू कैन डू that's good, but
see, we all have limited time, so in that limited time it's better to focus on where we get maximum value for our effort. Coming on to the orientation, again we have seen that orientation for phase 1 current affairs is moving towards phase 2 year on year, but I think this trend is again becoming more and more potent every year. तो इस साल भी अगर आप देखेंगे जो GA था आपका, right, the number of questions in GA have decreased. Earlier it used to be 30 plus, but abhi this year it was around 20. And moreover, the questions are tough, in depth. They're not asking you very simple questions that who got appointed as chairman of this bank, right? Or say who won this sports tournament. The questions are very different. They are based upon your understanding, in-depth understanding of particular news. तो अभी phase 1 का कुछ current affair नहीं रहा है. You have to do integrated preparation, right? Or I would say you do current affairs preparation for phase 2. Your 80% preparation for phase 1 current affairs is already done. So वो जो होता है ना कि मैंने अभी बैंकिंग का एग्जाम दिया है, मैंने करंट अफेयर्स वहां से पढ़े हैं, उसी से मैं आरबीआई भी दे लूंगा, नहीं. आपने स्वाद ले लिया होगा अगर वो किया होगा. So now it's time to actually mend your ways. Third is about the sources. See, normally we tell you the sources के are PIB, especially for schemes, Hindu for reports and ESI current affairs, and Limint for finance current affairs. These are the important resources. Maximum strike rate in resources से रहा है previous year में, but this time we have seen a unusual thing that many of the questions have been asked which are exclusively covered in Economic Times. 7 to 8 questions. मतलब ये न्यूज आपको जो इकोनॉमिक टाइम्स में कवर्ड है ये हिंदू या लाइमिंट में है ही नहीं. ठीक है, आप सर्च भी कर सकते हैं. आई विल शो यू सम क्वेश्चंस हियर. जैसे ये क्वेश्चन था, रिसेंटली इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस हैव बीन ट्रेन्ड इन डैश क्रब मागा टू काउंटर चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी. ये आप गूगल पे यही सेंटेंस सर्च करके देखिए, यू विल गेट ओनली आर्टिकल इन इकोनॉमिक टाइम्स. दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व under phase 1 has set up strategic petroleum reserve at 3 locations, namely Visakhapatnam, Mangalore and Dash. तो ये जो questions हैं, these have been kind of, it seems from the news that was part of Economic Times very selectively, exclusively. बाकी newspapers में हमें तो नहीं मिल रही हैं. If they are present, do let us know. तो शायद it's time to add Economic Times in your resources, right? In your resource list if you are preparing by yourself. And for, I think for us it would be that the action point would be that we also start curating the news from Economic Times in our monthly magazines. Then in current affairs, I think now they are asking lesser of the hard facts. ये भी धीरे धीरे काफी कम हुआ है. I mean, I can show you some previous year questions. ऐसे facts, numbers, answers होते थे. They used to ask hard facts. राइट, हार्ड फैक्ट्स मतलब बिल्कुल नंबर्स. सॉफ्ट फैक्ट्स मतलब उन्होंने पूछ लिया कि टूर्नामेंट किसने जीता, रेपो रेट कितने से कितना बढ़ाया गया. दोज आर स्टिल यू कैन रिमेंबर, राइट, दोज आर दोज काइंड ऑफ फैक्ट्स. बट हार्ड फैक्ट्स तो बिल्कुल डेटा बेस्ड हैं, याद करने बहुत मुश्किल है. सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड इन 2022, नाउ इन 2023 यू विल फाइंड देम दैट देयर वेटेज हैज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली. तो मतलब जो कोर हार्ड नंबर्स हैं उनको शायद रट्टा लगाने की अब जरूरत नहीं है, बट स्टिल एग्जाम फैक्चुअली है, काफी चीजें आपको रिमेंबर रखनी पड़ेंगी. बट एटलीस्ट डेटा रिमेंबर करना भी इतना जरूरी नहीं है. हार्ड डेटा बहुत ही जो स्पेसिफिक है. बाकी इतना तो पूछ ही सकते हैं कि बजट में कितना अमाउंट एलोकेट हुआ, जो मेन पॉइंट्स है. ठीक है, तो ये एक लर्निंग आप ले सकते हैं. तो इफ आई जस्ट समराइज, तो ये आपकी ड्यूरेशन 3 मंथ्स फॉर फेज 1, 5 मंथ्स फॉर फेज 2. इससे ज्यादा मत कीजिए. मैक्सिमम 5 मंथ्स कर लीजिए सो दैट इट इज यूजफुल फॉर फेज 1 एंड फेज 2, या 6 महीने कर लीजिए. फेज 2 के करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस कीजिए. दैट विल हेल्प यू टू क्रैक फेज 1 ऑल्सो. सोर्सेस में इकोनॉमिक टाइम्स ऐड कीजिए और हार्ड फैक्ट्स पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, अंडरस्टैंडिंग पे दीजिए. और जो थोड़े बहुत मेन फैक्ट्स हैं उन पे ध्यान दीजिए. हार्ड फैक्ट्स आर नॉट द कॉल ऑफ द डे राइट नाउ. द थर्ड पॉइंट इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इन फेज 2 में. अगर आप देखेंगे, अगेन मोर एंड मोर क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स. तो पहले ईएसआई में तो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते ही थे, बट इफ यू सी द ट्रेंड इन फाइनेंस ऑल्सो, तो काफी क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से. इनफैक्ट तीनों क्वेश्चंस मैं बोलूंगा, राइट. ये आपका ओएनडीसी पे आया था, ये आपका रिटेल डायरेक्ट स्कीम पे आया था, और एक क्वेश्चन आपका यूपीआई था, यूपीआई पे. ऑल दीज 3 क्वेश्चंस आर फ्रॉम द न्यूज व्हिच वर काइंड ऑफ रिलेटेड टू करंट अफेयर्स. तो यहां पे एक ट्रेंड इमर्जिंग आप देख सकते हैं. लास्ट ईयर आई थिंक देयर वर 2 क्वेश्चंस, वन वाज ऑन एलटीआरओ एंड ब्लॉकचेन,
बट इस साल तीनों क्वेश्चंस करंट सिनेरियो पे आए हैं, करंट अफेयर्स पे आए हैं फाइनेंस में, एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू इंक्रीज। सो यहाँ पे हमें थोड़ा करंट अफेयर्स पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। द क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर्स में हैं उन पे डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस करना, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को इमेजिन करना क्या बन सकते हैं, उस चीज पे मेहनत करनी रहेगी। द फोर्थ वन इज अगेन which is we have been telling you again and again कि descriptive writing deserves higher attention. I know a lot of people एग्जाम आता था, इंटरफेस पे अच्छा नहीं कर पाए क्योंकि इंटरफेस नया था, कीबोर्ड को एडजस्ट नहीं कर पाए, वर्ड लिमिट मीट नहीं कर पाए, टाइपिंग स्पीड कम थी, पेपर पूरा नहीं हुआ, सो दे स्ट्रगल्ड अ लॉट। सो यहाँ पे आई थिंक यू नीड टू लर्न दैट इवन इफ यू हैव नॉलेज, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज अ स्किल विच विल नो गेट पॉलिश्ड विद टाइम। तो यहाँ पे प्लीज एज्यूम मत कीजिए कि मैं पढ़ता रहूंगा और लास्ट में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर लूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके फेज 2 का। यू नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे यू स्टार्ट स्टडिंग। एक चैप्टर कर लिया, उस पे 2 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के कीजिए। इट इज नॉट गोइंग टू टेक मच ऑफ योर टाइम, मे बी इनिशियली इट्स अ स्ट्रगल, बट विद टाइम आफ्टर 1 month यू विल फाइंड इट अ वेरी कैजुअल प्रोसेस। इट्स ओनली अबाउट इंप्रूविंग आफ्टर दैट। फिफ्थ अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने ऑब्जर्व किया है ईयर ऑन ईयर, कि हम सब लोग नॉलेज के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं कि मैं कहीं से बस एक अच्छा सा कोर्स ले लूं, व्हाट्सएप फेसबुक पे मुझे सब कुछ मिल जाए, मैं उसको डाउनलोड करके रख लूं, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लूं। सी, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट दैट इज इंपॉर्टेंट, बट राइट नाउ वी आर गिविंग इट इंपॉर्टेंस एट नंबर 1 कि बस बहुत अच्छा मटेरियल हो, उसको पढ़कर नॉलेज ले लूंगा और एग्जाम क्रैक कर दूंगा। बट प्रैक्टिकली I would say the other 3 things which I see they are more important than knowledge are intent. First of all, intent. Intent बहुत जरूरी है. Till the time you feel that urge inside you that whatever may, I have to clear this exam, I have to get this job. I think आप बस मटेरियल इकट्ठा करते रहेंगे, उसको कभी भी पढ़ नहीं पाएंगे, जस्टिस नहीं कर पाएंगे. ये बहुत जरूरी है. मैंने पहले भी बताया था, इंटेंट एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर जो आग है ना उसको और चिंगारी देगा और तेज करेगा, और आप अपना प्रोडक्टिविटी देखिएगा उसके बाद कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. दूसरी चीज है मेंटरशिप. कंटेंट बहुत है, नॉलेज बहुत है इधर उधर, मतलब कहीं से भी आप पढ़ने लग जाओ तो विकिपीडिया पे इतनी नॉलेज है. बट आई थिंक इट्स मोर अबाउट मेंटरशिप के किस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, किस चीज को कितना टाइम देना चाहिए, कोई डाउट आता है तो उस डाउट का क्या सही टाइम पे आंसर मिल रहा है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एस्पिरेंट के माइंड में. आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल दोस क्वेश्चंस गेट आंसर्ड एप्रोप्रिएटली, करेक्टली एंड विद इन अ सर्टेन टाइम लिमिट. तो मेंटरशिप बहुत जरूरी है. विदाउट अ गुड मेंटर यू विल फील लॉस्ट. इतना सारा किताबें इकट्ठी कर ली, कोर्स ले लिए, बट फिर भी पता नहीं लग रहा है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है. दैट इज द वर्स्ट सिचुएशन यू कैन हैव. तो पहली इंपॉर्टेंस इसको दीजिए लाइफ में, हमेशा कुछ भी काम करना हो. आरबीआई ग्रेड बी के केस में दूसरी चीज जो है इंपॉर्टेंट है मेंटरशिप. और तीसरी चीज मैं बहुत कहूंगा जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनती जा रही है धीरे धीरे, दैट द हैबिट यू नीड टू इनकलकेट एन हैबिट ऑफ रीडिंग अ न्यूज़पेपर. ये हम नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है. बट मुझे लगता है कि जैसे आपका एग्जाम धीरे धीरे चेंज हो रहा है, यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर. एंड अगेन इट्स नॉट अबाउट दैट यू स्टार्ट रीडिंग करंट अफेयर डेटा फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स. नहीं, वो आपको कहीं ना कहीं कंपाइलेशंस में मिल जाएगा. फ्रॉम द न्यूज़पेपर आई वांट यू टू बिल्ड अ पर्सपेक्टिव, बिल्ड अ ओपिनियन. और वो दो चीजें ही आपको पढ़नी है उसमें. वन इज एडिटोरियल, और ज्यादा से ज्यादा एक बिजनेस पेज होता है उसको पढ़ लीजिए. यू विल बी मोर देन रेडी टू क्रैक दिस एग्जाम, राइट. जो भी आपको न्यूज़पेपर से चाहिए वो यहां से मिल जाएगा. एंड इट इज नॉट अ बिग जॉब. अगर आप ये 2 पेज पढ़ते हैं, इट इज हार्डली गोइंग टू टेक योर 15 to 20 मिनट्स. और इसमें अगर पूरा नहीं भी होता है छोड़ दो, बट 15 से 20 मिनट तो पढ़ो ना, सो दैट यू गेट टू नो अबाउट द बर्निंग इश्यूज एंड यू आर वेल अवेयर, यू आर इंटेलेक्चुअली हाई, राइट, ऑन योर नॉलेज. तो वो चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी आगे जाकर, डिस्क्रिप्टिव हो या आपका इंटरव्यू हो, और एक कॉन्फिडेंस देंगी आपको विच इज रियली गोइंग टू हेल्प यू इन द अपकमिंग टाइम. तो ये चीजें हैं मेरे हिसाब से जो आपको अभी लर्निंग्स लेनी चाहिए व्हेन यू स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट साइकिल, ठीक है. एंड ऑल दीज आर द लर्निंग्स विच आर समथिंग विच नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड. सुनकर कुछ नहीं होगा, यू नीड टू इम्प्लीमेंट दैट, यू नीड टू एग्जीक्यूट दैट, देन ओनली दोज लर्निंग्स आर गोइंग टू गिव यू सम रिजल्ट, ठीक है.
बाकी जाते जाते एक फॉर्मेलिटी जरूर पूरी करूंगा कि ये हमारे कोर्सेज है आरबीआई ग्रेड बी के गोल्ड एंड सिल्वर पैकेजेस, ठीक है। So gold package has everything for you. Phase 1, phase 2 interview. Silver pack has mainly phase 2 and interview, but phase 1 की GA आपको silver pack में भी मिलेगी. And to check the quality of the material that we are offering in the gold pack and silver pack, you can download free material. And to download that free material, there is a link in the description. वहाँ पे जाइए, check कीजिए, and if you need some assistance, you can enroll into these courses. So I take you leave, guys. Best of luck, have a nice day, and wish you बहुत 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 लक, बहुत बहुत मेहनत की शुभकामनाएं फॉर योर नेक्स्ट साइकिल। जोर लगा के करना है, हिम्मत दिखा के करना है, पूरी ताकत लगा के करना है। डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड टू फुलफिल योर ड्रीम। लाइफ में ज्यादा चांस नहीं मिलते हैं और ये चांस बहुत गोल्डन चांस होते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और वीडियो के नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, कोई ऐसी लर्निंग जो मैंने नहीं बताई है आप इस एग्जाम से लेंगे 2024 के लिए। आई रिपीट, वीडियो के नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा कोई ऐसी लर्निंग जो मैंने नहीं बताई है लेकिन आप 2024 एग्जाम के लिए लेकर तैयारी करेंगे। बाय बाय।